لیکن یہ اہل بیت اطہار کے سامنے معاملہ تھا. پوچھنے والے نے پوچھا یا علی ہمارے یہاں جبکہ ایسا کچھ تھا نہیں, ہمارے یہاں ایسا جانور ہے کہ جس کا آدھا بدن نجس جانور کا ہے اور آدھا جسم پاک جانور کا ہے, ہم اسے پاک سمجھیں یا نجس سمجھیں؟ تو مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا کہ ایسا ہے, اس کے سامنے کھانا رکھو اور پھر یہ دیکھو کہ وہ کھاتا کیا ہے. ایک طرف گھاس رکھو اور دوسری طرف گوشت رکھو. اگر گوشت کھائے تو یہ سمجھنا کہ وہ نجس ہے, اور اگر گھاس کھائے تو یہ سمجھنا کہ وہ پاک جانور ہے. مجمع اگر اپنے علم میں اضافے کے لیے آتا تو شاید خاموش ہو جاتا, لیکن وہ آیا کسی اور ارادے سے تھا. اس نے برجستہ آواز دی یا علی ہم نے گھاس بھی رکھی گوشت بھی رکھا, لیکن کبھی گھاس کھاتا ہے اور کبھی گوشت کھاتا ہے. بتائیے ہم پاک سمجھے یا نجس؟ مولا کائنات نے فرمایا کوئی بات نہیں, ایسا ہے کہ اس کے سامنے پانی کا ظرف رکھو اور پھر یہ دیکھو کہ وہ زبان سے چاٹ کے پی رہا ہے یا دہن کے سہارے پی رہا. اگر زبان سے پیے تو سمجھو کہ نجس ہے, اور اگر دہن کے ذریعے پیے تو یہ سمجھنا کہ پاک ہے. پھر مجمع نے وہی آواز دوہرائی یا علی ہم نے اس کے سامنے پانی کے ظرف کو رکھا, کبھی وہ زبان سے چاٹ کے پیتا ہے اور کبھی وہ دہن کے سہارے پیتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ اس کو بلواؤ, دیکھو کہ وہ بولتا کیسے ہے. اگر ویسے بولے جیسے نجس جانور بولتا ہے تو یہ سمجھنا کہ وہ نجس ہے, اور اگر ویسے بولے جیسے دمبا بولتا ہے تو یہ سمجھنا کہ پاک ہے. پھر انہوں نے اشکال کیا یا علی کیا بتائیں, ہم نے کئی مرتبہ اس سے بلوانے کی کوشش کی لیکن کبھی ایسے بولتا ہے اور کبھی ویسے بولتا ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا کوئی بات نہیں, اسے بکریوں کے گول میں چھوڑ دو اور پھر یہ دیکھو کہ وہ چلتا کیسے. اگر بکریوں کے جھرمٹ میں چلے تو یہ سمجھنا کہ پاک ہے, اور اگر بکریوں کے پیچھے پیچھے چلے تو یہ سمجھنا کہ نجس ہے. تو انہوں نے پھر کہا یا علی ہم نے کئی مرتبہ ایسا کیا, لیکن کبھی وہ دمبوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور کبھی دمبوں کو پیچھے پیچھے چلتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا کوئی بات نہیں, ایسا ہے کہ اس کو ذبح کرو. اب سوال ہی ختم ہو رہا ہے, سوال ہی ختم ہو رہا ہے, کیا اس کو ذبح کر دو. ذبح کر کے کیا کریں گے؟ ذبح کر کے یہ دیکھو کہ اس کے اندر سے آتے نکلتی ہیں یا اوجھڑی نکلتی ہے. اگر آتے نکلے تو یہ سمجھنا کہ نجس ہے, اوجھڑیاں نکلے تو سمجھنا پاک ہے. مجمع نے ندامت سے سر کو جھکایا اور آواز دی یا علی آپ کے علم کے بارے میں ابھی تک ہم نے پیغمبر سے سنا تھا, دیکھا نہیں تھا, آج سنا بھی ہے اور آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. پیغمبر اسلام کے اس جملے پہ مولا کائنات نے جو آواز دی تو مجمع نے پلٹ کر کہا یا علی ہمیں معاف کیجئے گا, ہم نے آپ کے علم کے بارے میں شک کیا. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم میں کا ہر ایک قیامت کی صبح تک اگر مجھ سے ایسے ہی سوال پوچھتا رہے تو علی کو ہر ایک اس کے مطابق جواب دیتا رہوں گا. تم سوال پوچھتے پوچھتے تھک جاؤ گے, علی جواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا. یعنی مولا کائنات کائنات ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے جو کہا وہ ایسا نہیں ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر کہا, ایسا نہیں ہے کہ قرابت داری کی بنیاد پر کہا. پیغمبر اسلام نے اہل بیت کی جو فضیلتوں کو بیان کیا وہ واقعی اس فضیلت کے حامل تھے, اور سماج نے, معاشرے نے, مسلمانوں نے, دنیا نے اہل بیت کی فضیلت کو سمجھا ہی کیوں نہ. میں نے کہا آپ علماء سے پوچھیں تو وہ آپ کو اچھے سے بتائیں گے کہ ابھی یہ زمانہ اہل بیت کی فضیلت کے فے سے واقف نہیں ہے. پوری فضیلتوں کو تو جانے دیجیے. دورے کی مجلسیں ہیں, وقت سب کے پاس بہت کم رہتا ہے, میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, لیکن بس صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار جن فضیلت اور جن کمالات پر فائز ہیں وہ کمال وہ ہے کہ جن کو بیان کرنا ہماری زبانوں میں طاقت نہیں ہے کہ ہم ان فضائل کو, ان کمالات کو بیان کر سکیں. اور جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں, کوئی بھی ایسا نبی, کوئی ایسا ولی, کوئی ایسا فقیر نہیں گزرا کہ خالق کائنات نے جس ولی کو, جس نبی کو مفت میں اس کو عہدہ دے دیا. اس بات کو بچے پیش نظر رکھیں, بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. جوانوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ خالق کائنات نے اگر کسی نبی کو عہدہ دیا تو وہ اس کی قربانیوں کو دیکھ کر دیا. کیوں رسول 313 سے آگے نہیں ہے؟ کیوں بڑے رسول 5 سے آگے نہیں ہے؟ کیوں بہت سارے ایسے نبی ہیں کہ جن کا نام ہم جانتے ہیں, بہت سے ایسے نبی ہیں کہ جن کو کوئی جانتا ہی نہیں.
तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये बस सिर्फ इसलिए कि जिस नबी ने जैसे कुर्बानी राह खुदा में दी, खालिक़े कायनात ने उसको उस कुर्बानी के एवज़ दे के बताया कि अगर तुम्हारी कुर्बानियाँ इतनी हैं तो हमारी अता में कमी नहीं है। तन्हा ऐसे पैगंबर जनाब इब्राहिम गुजरे कि जो एक वक्त में नबी भी है, उसी वक्त में इमाम है, लेकिन न जनाब इब्राहिम से पहले और न जनाब इब्राहिम के बाद कोई नबी ऐसा हुआ कि जो एक वक्त में नबी भी हो और इमाम भी हो। ये क्यों ओहदा मिला जनाब इब्राहिम को? जनाब इब्राहिम ने जो बेटे की कुर्बानी दी, इससे पहले न किसी नबी ने दी, और सैयदुल अंबिया तक न किसी नबी ने इनके बाद दी। तो जैसे कुर्बानी जिसने दी, और अहले बैत का कमाल यही है अज़ीज़ान मोहतरम कि खालिक़े कायनात ने जो ओहदा आपको अता किया, जो एजाज आपको अता किया, वो एजाज किसी को नहीं अता किया। क्यों? इसलिए कि कुर्बानी का जज्बा हद से ज्यादा है। क्यों? करबला का वाक़या 1400 बरस हो गए, पढ़ते चले आते हैं, जब पढ़ा जाता है तो ऐसा महसूस होता है अभी कल की बात है। आप एक मजलिस से दूसरी मजलिस, दूसरी मजलिस से तीसरी मजलिसों में शिरकत करते हैं, मसाइब वही सुनते हैं, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम जब पढ़ा जाता है तो ऐसा लगता है हमारा कलेजा कबाब हो रहा है, हमारा जिगर टूटा जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जानते हैं हैदराबाद का वाक़या है, मुझे ये मालूम नहीं कि हैदराबाद पाकिस्तान वाला है या इंडिया वाला है, तारीख नवीसों ने तारीख लिखा, मैं आपकी खिदमत में बयान करूं कि देखिए अहले बैत के जिक्र से इंसान को जुड़ाव और लगाव कितना है, और ऐसा हो भी क्यों ना, खालिक़े कायनात ने अहले बैत को किस अंदाज से खल्क़ किया है। आप देखिए, करबला की जमीन पर जा रहे हैं हुसैन शहादत की गरज से, लेकिन जब करबला की सरजमीन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये जमीन है किस कबीले की। तो जमीन को आपने खरीदा अली अकबर के नाम से। और करबला वालों का एक एजाज और आपकी खिदमत में रखूं कि करबला में जितनी तादाद थी, जो 72 थे, 71 थे, 73 थे, तारीख जो कहती है, मुझे उससे बहस नहीं, लेकिन जो इमाम हुसैन के साथ थे, उनका कैरेक्टर आप देखें कितने कमाल का कैरेक्टर था कि करबला की शहादत के बाद कोई ऐसा शहीद नहीं है कि जिसके दरवाजे पर दुनिया का, समाज का, माशरे का, कबीले का, खानदान का कोई एक आदमी पहुंचा हो और कहा हो कि ज़ुहैर शहीद तो हो गए, मगर मेरा एक दिरहम ज़ुहैर की गर्दन पर था। कोई एक ऐसा आप कैरेक्टर बताएं कि जो ये कहे कि जॉन शहीद को हो गए, मेरी मदर जॉन की गर्दन पर मेरा ये हक बाकी रह गया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कैरेक्टर है अहले बैत अतार का इमाम हुसैन, जिन लोगों को अपने साथ लेके आए थे, उनके वजूद में कितनी गहराई पाई जाती है। तो आप सोचें कि खुद मज़लूम करबला के किरदार का आलम क्या होगा। हैदराबाद का वाक़या मिलता है कि एक नौहा खान, उसकी आवाज में बड़ा दर्द था, वो नौहा पढ़ता था, और जब नौहे का पहला मिसरा, जिसको शेर शायरी की दुनिया में मतला कहा जाता है, पहला शेर पढ़ता था जब वो नौहे, तो मोमिनीन की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, मुसलसल गिरते जाते थे, और मजमे में कोहराम बर्पा हो जाता था। और वो भी ऐसा क्यों ना, नौहे का मतला ही ऐसा था, पहला मिसरा ही ऐसा था कि जो मोमिनीन के दिलों में ऐसा असर पैदा करता था कि मोमिनीन उस मतले को सुन के अपने आंसुओं को रोकते नहीं। और जब मुहर्रम नमूदार होता था तो लोग उसे मदऊ करते अपने घर कि आओ मेरे यहाँ एक बार ये कलाम पढ़ दो, नौहा पढ़ दो, और वो नौजवान सबके यहाँ जाता और नौहा पढ़ता, और मजमे में जो असर पैदा होता के लिए वो देखने के काबिल होता था। अज़ीज़ान मोहतरम, उसका मतलब ये था कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी, ये उसका मिसरा था, ये पढ़ता था, और इस मतले को सुनकर मजमा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता था। खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। अज़ीज़ान मोहतरम, दिन गुजरते गए, माहे अज़ा के दिन चल रहे थे, वो जाता नौजवान और लोगों की नौहा पढ़ता था। एक रोज ऐसा हुआ, मुहर्रम के अय्याम खत्म हो गए, उसके यहाँ खालिक़े कायनात ने एक बहन थी, बहन की शादी की तकरीब आई, इंतजामात हुए, लवाज़िमात सारे उसने इकट्ठा किए, मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब घर में इस तरह का प्रोग्राम होता है तो पैसों की कहीं ना कहीं शॉर्टेज हो जाती है, पैसों की शॉर्टेज। उस शहर में एक बड़े मोमिन आदमी रहते थे, उनका नाम था किरमानी साहब, लोग उनको किरमानी साहब के नाम से बुलाते थे। नौजवान किरमानी साहब के यहाँ गया कि सरकार, आपको मालूम है मेरे यहाँ शादी की तकरीब है, बहन की शादी तय पाई है और पैसों की शॉर्टेज हो गई है, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे
थोड़ा पैसा दे दे ताकि अपनी बहन की शादी में निपटा दूं, और मेरे महीने की जब तनख्वाह आएगी मैं वादा करता हूँ कि आपको वो तनख्वाह मैं लौटा दूंगा। किरमानी साहब अपने हुजरे में गए और एक रकम निकाली और ला के नौजवान की खिदमत में रखी। नौजवान चलने लगा तो किरमानी साहब ने फरमाया कि मेरे भाई पैसा मत लौटा दे। वो बात को कुछ दूसरे अंदाज में ले गया। उसने कहा सरकार आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम अहले बैत का तस्करा करने वाले हैं, हम किसी का पैसा लेते नहीं हैं, आप परेशान ना होइए, आपके पैसे जाएंगे नहीं। मेरी महीने की तनख्वाह जैसे ही आएगी मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं वो तनख्वाह आपको ला कर दे दूंगा। किरमानी साहब की आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा मेरे भाई मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम वो रकम ले जाओ और अगर मेरा इंतकाल हो जाता है उस रकम के लौटाने से पहले तो तुम मेरी लहर में उतरकर एक मर्तबा ये नौहा पढ़ देना कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया रहमत का नवासा पानी। अजीजा ने मुहतरम वो नौजवान गया, शादी की तकरीब खत्म हो गई, दिन गुजरते गए, यहाँ तक के किरमानी साहब का इंतकाल हो गया। लोग गए, उसको कफन दिया, तजवीज़ व तकवीन के सामान को फराहम किया, कब्रिस्तान तक लेके आए, लहद में लिटाया, पटना रखना चाहते थे कि नौजवान को खबर हुई, ऑफिस में था, खबर हुई कि इंतकाल हो गया। किरमानी साहब का दौड़ता हुआ ऑफिस से कब्रिस्तान पहुंचता है, देखता है कि लोग पटरे लगा रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खुदा कोई गम न दे। देखिए अहले बैत के मसाइब में कितनी तासीर पाई जाती है। बहुत सी तारीख आपने सुनी होगी, जान हिरन का वाकया सुना होगा, ये वाकया न जाने कितने वाकये, मगर कहने का मकसद बस सिर्फ यही है कि असर अहले बैत के कमाल, अहले बैत की शहादत में कितना है। आवाज दी जरा ठहरो, रुको। लोग रुक गए। का क्या हुआ? खैरियतों का मुझे वसीयत पूरी करनी है। लोग पहचानते थे, पटरे को हटाया गया, नौजवान लहद में उतरा। एक मर्तबा उसने उसी नौहे के मतले को पढ़ा, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया। अहमद का नवासा पानी ये जुमला कह रहा था कि सबने देखा मैयत की आंखों से अश्क रवा हो गए। लोग समझे कि हमसे गलती हो गई, हम जिंदा आदमी को मुर्दा समझ के कब्र में लेटा रहे हैं। डॉक्टर को फोन किया गया, सरकार जल्दी तशरीफ लाइए, हमसे इज्तिमा हो गया। जिसको आपने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। डॉक्टर दौड़ के आता है, दौड़ के आया, देखा मैयत की नब्ज को देखा, कहा नहीं ये तो मर चुका है। कहा नहीं सरकार, कहाँ पढ़ा जा रहा था तो इसकी आंखों से आंसू जारी थे। डॉक्टर ने कहा कि जरा फिर से पढ़ो, मैं भी देखना चाहता हूँ। एक मर्तबा उस नौजवान ने फिर से उसी मसले को दोहराया, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। मैयत की आंखों से अश्क जारी थे। मर्तबा डॉक्टर ने टीम को बुलाया, जरा आओ देखो ये कैसा एजाज है। और कहती है कि भाई इस मरने वाले का हुसैन के मसाइब से ऐसा कि जब ये नौहा पढ़ा जाता है इसके मुर्दा जिस्म रूह लड़ती है, प्यार खत्म होता है, रूह वापस चली जाती है। पर मुझे कहने दीजिए कि ये हुसैन के मसाइब का असर है, लेकिन जब हुसैन के सरवतन में जुदाई हो रही होगी, गई होगी मेरे लाल हुसैन चक्किया भी इसके पाला है। आज की तारीख की मुनासिब हमारे शहजादे जनाब कासिम से है। आप नौहे पढ़ेंगे, मातम करेंगे, गिरिया करेंगे। अजीजान मोहतरम महज़र शहादत में हुसैन एक एक का नाम पढ़ रहे हैं। तारीख कहती है 13 बरस का शहजादा दौड़ता हुआ हुसैन के ज़हने में दाखिल हुआ। चेहरा फर्द मुसर्रफ से झूम रहा है। मेरा चचा महज़र शहादत पढ़ रहा है। जैसे ही शहजादा ज़हने में दाखिल हुआ, हुसैन एक एक का नाम ले रहे हैं। आवाज दी, चचा ये बताइए कि कासिम का नाम महज़र शहादत में नहीं है? हुसैन ने आवाज दी, नहीं मेरे लाल, तेरा नाम भी महज़र शहादत में है। मेरे भैया अली अस्कर का नाम भी महज़र शहादत।
जैसे ही कासिम ने सुना, चाचा मेरे भैया अभी उसका का नाम महज़र शहादत, चाचा मेरा भैया तो अभी कदमों से चल भी नहीं सकता, ये कैसे मैदान कारज़ार जाएगा? तो हुसैन ने कहा मेरे लाल ये मैदान कारज़ार जाएगा, लेकिन अपने पैरों पे नहीं, तेरा ये चचा सदर को लेके जाएगा। आजुरुकुम अल्लाह, आजुरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा जनाब कासिम है, आवाज दे रहे चचा फिर अपने भतीजे को इतने जिहाद क्यों नहीं देते? आवाज आई है मेरे लाल कासिम, तुम मेरे भैया हसन की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं? वो बच्चा कि जो फर्द मसरत से झूमता हुआ खैमे में गया था, तारीख कहती है चेहरा लटका हुआ है, खैमे से बाहर आए, अपने खैमे में दाखिल हुए, माँ ने जैसे ही कासिम के उतरे हुए चेहरे को देखा, पहला सवाल किया मेरे लाल अभी तक तुम खैमे में क्या कर रहे हो? तेरा चचा डर गए आका में गिरा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, कैसे पुरसा देना हो दे दे, इसलिए कि आज़ा के वक्त बहुत कम रह गए हैं, रहे जो अगले बरस हम है, ये दम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। मेरे लाल खैमे में क्या कर रहे हो? तेरा चचा डर गए आका में गिरा है। कासिम ने आवाज दिया माँ मैं चचा के पास गया था, चचा महज़र शहादत पढ़ रहे हैं मगर मुझे इजाजत नहीं देते। मैं एक मर्तबा उम्मे फरवा ज़मीन करबला पे बैठती है, खैमे में बैठ गई, मगर अचानक फरवा को याद आया कि हसन का आखिरी वक्त था, मेरे इमाम ने अब अपने शहजादे के बाजू पे एक तावीज़ बांधा। एक मर्तबा जनाब उम्मे फरवा उठी, आवाज दी मेरे लाल जरा आस्तीनों को पलट दे। जनाब कासिम ने आस्तीनों को पलटा तो क्या देखा? बाजू पे तावीज़ है। उम्मे फरवा ने तावीज़ को खोला, का मेरे लाल इसे पढ़। जनाब कासिम ने जो पढ़ा तो उस तावीज़ पे लिखा था वलदी वलदी इज़ा काना मुगल हुसैन फिल करबला वहादत बिहिल आदा फला ततरुकिल जिहाद। मेरे लाल जब मेरा भाई हुसैन आदा के नर्दे में घिर जाए तो कभी जिहाद को फरामोश न करना। एक मर्तबा खुशी से वो तावीज़ लेके जाते हैं, हुसैन की खिदमत में रखते हैं। अब मेरे मौला के पास कोई बहाना नहीं है, भाई ने भाई की तहरीर देखी, ए मेरे भैया साहब आपको कितना ख्याल था हुसैन का, ये आपकी अमानत मेरे पास है। जब आपकी ज़ियारत का मुश्ताक होता था तो आपके जवान को देख लेता था, लेकिन हाय अफसोस, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, हाय अफसोस कि आज कासिम भी जा रहा है। लीजिए कासिम मैदान विदा में आते हैं, जिहाद करते हैं, लेकिन कब तक? 3 दिन का भूखा प्यासा शेर जिहाद करता। तीरों पतीर चलने लगे, तबर पे तबर बरसने लगे। एक मर्तबा 3 दिन का प्यासा कासिम घोड़े पे संभल न सका, आवाज दी चचा अब भतीजा संभल न पाएगा, आइए कासिम का आखिरी सलाम। हुसैन ने भतीजे का सलाम सुना, अकबर दौड़े, अब्बास दौड़े, मगर हुसैन ने बैठाया कि मेरे भैया की निशानी है, चचा हाजिर है। घोड़े को महमेज किया, मैदान कारज़ार पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? मशरिक के घोड़े मगरिब में दौड़ रहे हैं, मगरिब के घोड़े मशरिक में, बीच में लाशे कासिम पामाल हो रहा है। आवाज देते मेरे लाल कहाँ हो? मगर गिरने वाला जब गिरता था तो आवाज देता था, लेकिन कासिम ने कोई आवाज न दी। एक मर्तबा मेरा मसलूम इमाम कहता है मेरे लाल कहाँ हो? तेरा चचा आवाज दे रहा है, मगर कासिम ने कोई आवाज न दी। एक मर्तबा हुसैन रकाब पे खड़े होते हैं, पेशानी पे हाथ रखते हैं, ए मेरे लाल आवाज दो, देखो तुम्हारा चचा आ गया, मगर कोई आवाज न आई। अब हुसैन घोड़े से उतरे, क्या देखा कि लाशा सलामत नहीं है। अब आका दामन उतारा, ज़मीन करबला पे फैलाया, लाश के टुकड़ों को चुनते हैं, अब आके दामन में रखते हैं, खैमे का रुख किया। बीबियां जानती है जब हुसैन जाते हैं तो कोई ना कोई शहीद लेके आते हैं, लेकिन अब जब हुसैन आए तो घोड़े पे कोई शहीद नहीं है। उम्मे फरवा दौड़ी, ए मेरे आका, मेरे कासिम से क्या खता हो गई कि आप सब का लाशा लाए, मगर मेरे कासिम का लाशा न लाए।
ایک مرتبہ حسین نے کہا اے ام پروان، قاسم کا لاشا سلامت نہیں ہے۔ ابا کا دامن پھیلا دیا، ماں نے بیٹے کے ٹکڑے دیکھے، اے میرے لال تو نے زہرا کے سامنے ام پروان کو سرخرو کر دیا۔ واہ قاسم کا شور، واہ مظلومہ کا ماتم۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار کے محمد والے محمد کو ہماری اس مختصر سی عطا کو قبول فرما۔ جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت، پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگارا ہم سب مومنین مولا حسین کی عزا برپا کر رہے ہیں، پروردگارا ہم سے ہماری عزاداری کو قبول کر۔ اگر عزاداری میں کہیں کوئی کمی کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کرنا۔ امام اعظم کے ظہور میں حاضر فرما، ہم سب کو ان کے آبان و مسکان میں۔ اللہ علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس ایھا المسموم بالقدوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن یا خلیفۃ الرحمن یا امام الانس والجان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔